पहले पैसेज कर लिया जाए, आज कई दिनों से पेंडिंग है। यस एवरीवन। यस सर। हाँ सर। पैसेज नंबर 10, 11 ले लेते हैं। पैसेज नंबर 10 मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ फिर से। मिल गया। पहले 10 ले लेते हैं। सर इसके पहले वाला भी पैसेज नंबर 9 भी नहीं हुआ। नंबर 9 भी नहीं हुआ था क्या? यस सर। ओके, उसको पहले उसी को कर लेते हैं फिर तो। निशा नंबर 9 भेजिए जरा। हाँ मिल गया, ठीक है। 8 हो गया था ना? यस सर। अभी देखिए हमने 3 पैसेज भेजे हैं। अभी भेजा है मैंने। हाँ 10, 11 और 9। तो पहले 9 कर लेते हैं। लॉन्ग पेंडिंग पैसेजेस हैं, इनको क्लियर करते हैं। ठीक है। अब आप लोग कोर्स के लिए परेशान ना होइएगा, कोर्स बिल्कुल ग्रिप में है। ठीक है। अगर किसी को ये लगता हो कि अभी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना बाकी है, वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओके, परेशान मत रहिएगा। थोड़ा पैसेज वगैरह भी कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चन पैसेज नंबर 9 आप सब लोगों ने किया है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। एवरीवन। यस सर। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़। पैसेज नंबर 9 अभी अभी ग्रुप में हमने सेंड किया है। ठीक है, देखिए दो बड़े कम है। 2-3 लोगों के आने के बाद भी कुछ लोग गए, क्या लग रहा है? वे सुप्रिया जी नहीं आई है लग रहा है। अनीता मैडम नहीं आई है। मौसम थोड़ा सा खराब है, हो सकता है कुछ लोग। ठीक है, अरे तो कौन सा घर से जाना है? ठीक है। According to passage, corruption क्या है? Kautilya mentions the pressure of how many types of corruption in his contemporary society. Perversion of what is not mentioned in the passage. According to the passage, what all are the manifestation of corruption? ठीक है, तो this is passage number 9. पैसेज नंबर 9 मतलब PDF 9। ठीक है। Corruption is not, मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ। Corruption is not a new phenomenon in India. It has been prevalent in society since ancient times. History reveals that it was present even in the Mauryan period. Great scholar Kautilya mentions the pressure of 40 types of corruption in his contemporary society. It was practiced even in Mughal and Sultanate period. When the East India Company took control of the country, corruption reached new height. Corruption in India has become so common that people now are averse to thinking of public life without it. Corruption has been defined variously by scholars, but the simple meaning of it is that corruption implies perversion of morality, integrity, character, or duty out of mercenary motives, that is, bribery, without any regard to honor, right, and justice. In other words, undue favor for any one of, sorry, in other words, undue favor for anyone
for some money or other gains is corruption. Simultaneously, depriving the genuinely deserving from their rights or privilege is also a corruption practice. Shrinking from one's duty or dereliction of duty are also forms of corruption. Besides thefts, wastage of public property constitute varieties of corruption. Dishonesty, exploitation, malpractices, scams and scandals are various manifestations of corruption. ठीक है? According to the passage, corruption is क्या है? Answer. सर तीसरा थर्ड होगा सर थर्ड सर इक्विवेलेंस इन सैमसंग ठीक है, मैं जैसा नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 ओके, तो इसका फर्स्ट का थर्ड. ओके, सेकेंड, Kautilya mentions the pressure of how many types of corruption in his contemporary society. कितना? 40 Perversion of what is not mentioned in the passage. क्या होगा? सपोर्ट सेकेंड या फोर्थ? सेकंड सर According to the passage, ऑल ऑफ दीज होगा ना सर कहाँ है इसमें all of these? ऑप्शन है क्या all of these? थर्ड सर अकॉर्डिंग टू द पैसेज का हो रहा है दीदी अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड में all of these ऑप्शन है क्या? न सर बहुत देखा कहाँ आप लोग रहते हैं भाई? Okay. According to the passage, what all are the manifestation of corruption? अब बताइए. Fourth. ऑल ऑफ दीज होगा फोर्थ होगा सर What people are averse to due to corruption in India? थिंकिंग ऑफ पब्लिक लाइफ Yes, second होना चाहिए. सेकंड सर Yes, yes. ठीक है. उसके बाद ग्रामर है, मैं आता हूँ ग्रामर पे. कल जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते काफी लंबा समय तक चला था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, उसका ऑप्शन जो है नो इम्प्रूवमेंट ही होगा. वो सेंटेंस सही दिया हुआ है. ठीक है, आप लोग सही बोल रहे थे. ओके, उसको करेक्ट कर लीजिएगा. ऑलराइट, ओके सर सर फोर्थ का क्या होगा फिर बता दीजिए. एक सेकंड रुकिए. पूर्णिमा मैडम ठीक है? जी सर ठीक है. और सर कल वाले पार्टिसिपल की शीट में सर क्वेश्चन नंबर 15 का भी तो नो इम्प्रूवमेंट ही होगा, वो ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्योंकि सर सेंटेंस एकदम सही जा रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है. मैं क्लास को 1 मिनट के यहाँ रोक लेता हूँ. जो इनका ऑब्जेक्शन है पहले मैं वो देख लेता हूँ. मैडम वो सेंटेंस बताइए जल्दी, 15 नंबर जो है. द एथलेट्स सर नहीं, उसमें नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा मैडम. हेलो, यस सर. बोलिए, आप सेंटेंस बोल दीजिए. सर एक सेकंड पीडीएफ खोलना पड़ेगा, रुक जाइए. The athletes who won the prizes कुछ ऐसा ही था. Who have won? आर Who? बीइंग ऑनर्ड एक सेकेंड. Who have ये यहीं पे तो है. The athletes who have won prizes are being honored. ये था ना? यस सर.
तो देखिए जो क्वेश्चन दिया अपने आप में सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ए ऑप्शन लिया गया था, क्या लिया गया था? द प्राइज विनिंग एथलीट्स आर बीइंग ऑनर्ड, इसको हम लोगों ने लिया है। तो जो क्वेश्चन सेंटेंस दिया है ग्रामेटिकली करेक्ट है, गलत नहीं है, पर ऑप्शन नंबर ए भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम ए को क्यों प्रीफर करेंगे? बोलिए जो सेंटेंस में फोर्थ, फिफ्थ का सेकंड, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश ऑफ द 5 persons will appear in the court, क्या होगा? सर एनी ऑफ द 5 पर्सन। एनी आएगा, क्यों एनी आएगा? बोले 5 है तो ना बोथ चलेगा, ना इधर चलेगा, ना इधर चलेगा, ठीक है? ओके, राहुल कैन डैश 4 candles in one breath, क्या होगा? पुट आउट पुट आउट, फूक करके बुझाना ना, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ना। ओके, चूज appropriate synonym for the given word. Imbecility, सर फुलिशनेस। foolishness, second, okay. Choose appropriate synonym for the given word. Haughty, एरोगेंट। and 10th is choose appropriate option for the given idiom. Lion's mouth, A dangerous situation। यस सर। dangerous situation, ठीक है? शेर के मुंह में हाथ ना डालो बोलते हैं ना। ओके, देन 11, 12, 13, 14, 15 तक है इसमें। एक मिनट, 11, 12, 13, 14, 15. Choose appropriate option for the given idiom. To pull one out of countenance, क्या मतलब है? To make one feel ashamed। थर्ड ऑप्शन। To make one feel ashamed, एकदम सही बता रहे हैं ना? यस सर। Okay, to pull one out of countenance. Okay. Choose one word for the given sentence. A state of mental weariness from lack of occupation, क्या होगा? Option number 2 ना? यस। Okay. Choose one word for the given sentence. A dabbler in the art and literature, क्या होगा? Dilettant. ये स्पेलिंग रट लीजिएगा, dilettant. Shreya has got many friends because she has got much money. सही है? A lot of money। A lot of money. First option. Choose the incorrectly spelled word. सिलहट, सिलहट की स्पेलिंग क्या होगी? सर ए कहलाएगा। रट लीजिएगा सिलहट की स्पेलिंग, ठीक है? जब मैंने कहा रट लीजिएगा तो रट लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं पैसेज नंबर 10 पे। हाँ,
नंबरिंग कर लेता हूँ मैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? 12 सर। 12 है। सर जी सर मेरे यहाँ बहुत तेज चमक हो रही है, बारिश हो रही है, बिजली फिट कर दें? हाँ, आपकी अगर नहीं कर पा रहे तो क्विट करिए, क्या करेंगे? जी बहुत चमक हो रही है। अगर रिकॉर्डिंग पॉसिबल होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी ठीक है। अच्छा, ये तो डेटा बेस्ड है, इसमें पढ़ने का कोई बहुत मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन पढ़ने का। ठीक है, आइए देखते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1, इन 2019 हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वर अब्रॉड? ठीक है, ये बढ़िया दिया है डेटा। Which of the following countries is not very popular with Indian students for studies? अभी मैं कल या परसों की न्यूज़पेपर में देख रहा था, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मतलब बाहर से जो जाते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, उसमें इंडिया टॉप पे है, चाइना सेकंड पे है। Which of the following countries is not very popular with Indian students for studies? How do we know the number of students getting visas for? How do we know the number of students getting visas for students in UK? उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग है, ये कर रहे हैं कि नहीं अरेंज करने वाले आप लोग? Yes. Yes, sir. Good, very good. The number of students going abroad for higher studies has increased by 68.79% in the past year. According to data provided by the Minister of State in the Ministry of Education, Subhas Sarkar, as per the data provided by him in Lok Sabha, the number of Indians enrolled in foreign varsities increased from 4.44 lakh in 2021 to 7.5 lakh in 2022. He clarified that while the Bureau of Immigration, देखिए immigration दिया ना, he clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, there is no index for capturing the category of Indians going abroad for higher एजुकेशन। कितने गए हैं कितने आए हैं इसका डेटा तो है, पर किस कैटेगरी के लोग आएंगे इसका डेटा, जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। Purpose of Indians going abroad for higher education is captured manually based either on their verbal disclosure or the type of visa of the destination country produced by them at the time of immigration clearance, Sarkar said. According to the data provided by the ministry, the number of Indian nationals increased from 4.5 lakh in 2017 to 5.17 lakh in 2018. There was a significant increase in 2019 as well, with 5.86 lakh students flying out of the country. However, during the COVID pandemic, the number of the Indian nationals in foreign varsities saw a drastic dip as only 2.59 lakh students were registered. While the number continued to remain low, it saw a slight increase in 2021 with 44 lakh registrations. However, the number has significantly jumped to 7.5 lakh in 2022. The increase in the number of Indian nationals abroad corresponds with the largest immigration report from some of the popular study abroad destinations such as the US, UK, and Australia. For the UK, the Immigration Statistics Report states that 1,27,731 visas were
granted to Indian students in September 2022, an increase of 93,470 against 34,261 in 2019. Similarly, in the US, the number of Indian students has more than doubled, and the Open Doors Report 2022 has predicted that the number of Indian students heading to America is likely to surpass those from China in 2023. बिल्कुल सही है. अभी कल परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने देखा था. ठीक है, ओके. तो इस समय जो है सबसे ज्यादा यही वाले हैं, इंडिया वाले ही अमेरिका में ज्यादा हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और सेकेंड नंबर पे चाइना है. ओके. In 2019, how many Indian students went abroad? 2019 में कितने गए? 5.86 lakh. थर्ड ना? Yes, sir. देखिए, ये पैसेज में कोई दम नहीं है, डेटा है, पर इस तरह का डेटा दे दिया है कि एग्जाम हॉल में दिमाग घूमने लगेगा ना. ओके. Which of the following countries is not very popular with Indian students for studies? कौन सा बहुत पॉपुलर नहीं है? China. How do we know the number of students getting visas for students in UK? Sir, from the record of Bureau of Immigration. From the records of Bureau of Immigration. Confirm है? Yes, sir. Second over, sir. So second over, sir. Immigration statistics report. From the immigration statistics reports के according. 2 मिनट रुक जाइए. ये ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन है, जहाँ पे ये लिखा है 2021 to 7.5 lakh in 2022. He clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, there is no, यही होगा, Bureau of Immigration सही है ना? बोलो भाई. Yes, sir. सेकंड ठीक है ना? बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The passage is mainly about immigration of Indians to UK, US and Australia, Indians enrolled in foreign universities, Indians going to America for higher studies, Indians going abroad for higher studies. बताइए. So fourth होगा. फोर्थ होगा ना? बोलिए भाई. Yes, sir. Yes. ठीक है, पहले लाइन में ही दिया है, फोर्थ होगा. फोर्थ का फोर्थ. फिफ्थ, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. एक सेकंड, हम जैसा एक कॉल कर लेता हूं. ओके. हाँ, अब हम लोग को अरेंज करना है ना पैसेज. अरे वो पहला जंबल का अरेंजमेंट करना है ना. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. They also wore felt caps to cover their ears. Felt cap क्या होता है भाई? They wore trousers tucked into leather boots. This place was famous for skillful archers and horsemen. In the
5th and the 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as Scythia. पहला कौन सा होगा? सर डी होगा पहला सर। चौथा जो है डी पहला होगा, और उसके बाद दूसरा जो होगा दिस प्लेस आ गया है तो सी आना चाहिए, हाँ या ना? यस फोर्थ वाला है सर। तो डी के बाद सी जो है किस में दिया है? 4th में दिया है ना, और किसी में नहीं है, तो ये 4th ही होगा। अगर किसी को लग रहा है कितना जल्दी कैसे पकड़ में आ गया, बोले इन चारों सेंटेंस को एक में मिला देंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा ना, फुल स्टॉप के साथ साथ, ठीक है। ये सी में दिस में टी कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए ए में दे कह रहा है, दे एक प्रोनाउन है, किसी को रेफर करेगा ना। फिर बी में भी दे है, दे एक प्रोनाउन है, किसी को रेफर करेगा, तो जिसको रेफर करेगा वो इसके पहले आना चाहिए, हाँ या ना। सी में कह रहा है दिस प्लेस, यह जगह कौन सी जगह, यानी कोई जगह है जो प्रीवियसली मेंशन्ड होगा ना, तो ये तीनों ही पहले नहीं आ सकते। तो पहला क्या होगा? इन द 5th and the 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as Scythia. तो ये किसकी बात हो रही? साउथ यूक्रेन की बात हो रही। फिर आगे हम कहेंगे कि ये जगह कौन सी जगह, बोले साउथ यूक्रेन। दिस प्लेस was famous for its skillful archers and horsemen. उसके बाद क्या होगा? बी आ गया, दे और ट्राउजर्स, दे किसके लिए आया है? आर्चर्स के लिए आया ना, ठीक है। एंड दे और पेल्ट कैप्स, ठीक है। 4th इजी है भाई, सबको समझ में आया तौर तरीका? ओके, ठीक है। उसके बाद चूज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। अ ग्रीन हॉर्न, सर सेकंड नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस ना, नीव, ओके। होना चाहिए था। गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा? थर्ड ओमिनियस, थर्ड ना। He was murdered in cold blood, क्या होगा? डेलिबरेटली। पक्का ना? यस सर। जानबूझ के। So the day the new product was launched, people made a beeline to purchase it, क्या होगा? सर बेस्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन 11 नंबर है। ओहो, आप लोगों का नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि आप लोग इसमें जो पॉइंट नंबर 8 पढ़ा है ना, 8 को डिलीट कर दीजिएगा। सर 7 को डिलीट कर दीजिए ना। नहीं, 8 को डिलीट कर दिया, और जो इंस्ट्रक्शन है वही क्वेश्चन नंबर है इंस्ट्रक्शन के सामने। ये जो क्वेश्चन सेंटेंस जो दे दिया गया है वहां पे 8 नंबर नहीं होना चाहिए, उसके बाद फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, 8 को हटा के, और 9 जो है क्या पढ़ा जाएगा? 8 पढ़ा जाएगा, और 10 क्या पढ़ा जाएगा? 9 पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कोल्ड ब्लड, डेलिबरेटली। 10 नंबर, द डे, 10 जिसको मैं कह रहा हूँ एक्चुअली वो 9 पे आएगा। नहीं, मेरा ही गड़बड़ हो गया क्या यार? इसको ऐसे करो, 6 नंबर हो गया है, 2, 7 नंबर, 7 का क्या है? तीसरा, ओमिनस, ठीक है। तो मैं 7 को 8 ही, अब ये समझ में 7 को 8, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं 7-8 इसको ऑब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। 7-8 कर दे रहा हूँ, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये 12, फिर ये 12 ही रहेगा, 13 तो है नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 9 नंबर का क्या होगा? दूसरा। 10 नंबर का क्या होगा? दूसरा। और अब आ गया 11, मेकिंग पाइज एंड केक्स, मिसेस रेड्डीज स्पेशलिटी, क्या होगा? सर इज। पक्का?
Yes, sir. यस सर पक्का। Yes is, oh sorry, मैं इसी लिख रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। A person who deliberately sets fire to a building, क्या होगा? Arsonist. Arsonist, ठीक है, ठीक है, बढ़िया तो चल रहा है। ओके, उसके बाद हम लोगों को फिर ये 9, 10 हो गया, 11 करना है ना? Yes, sir. 9, 10, 11। में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 15 है सर। 15। पैसेज भी लंबा है सर। अच्छा, लंबे पैसेज आप लोगों को चाहिए थे ना? कीर्ति को पैसेज चाहिए थे, कीर्ति आ ही नहीं रही है। अच्छा, जिस दिन पैसेज आप लोगों को मिलता होगा उस दिन आप लोग खुश हो जाते होंगे ना? Yes, sir. ये पैसेज खूब करवाएंगे, एक बार इससे ग्रामर से फ्री हो रहे ना, तो पैसेज और पूरा प्रैक्टिस जो एक फ्लो में चलता रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हाँ, ये किसी एग्जाम का है क्या? लग रहा है एग्जाम नहीं है, सारे पैसेज तो एग्जाम के, हमको लग रहा है बीपीएससी के किसी एग्जाम का तो नहीं है। क्यों भाई सर्वेश? नहीं, ये शायद जो है सीजीएल 2023 का है क्या? Where did the biggest fire burn in Australia? Authorities have to focus on just stopping the spread rather than putting the fire out. What is the long-lasting damage that the bushfire have caused to the wildlife in Australia? Which of the following countries has not sent help for firefighting? Some fires are also started deliberately. Deliberately here means the passage is mainly about. It can be inferred from the passage that this year's fire in Australia is mostly a result of. Which statement is not true according to the passage? ठीक है, शुरू करते हैं। Since September, at least 25 people have died and thousands have been made homeless. Every state and territory in Australia has experienced fires this summer, but the biggest fires burned along stretches of the eastern and southern coast where most of the population lives. This includes area around Sydney and Adelaide. More than 6.3 million hectares have been burned so far. 1 hectare is roughly the size of a sports field. To put that in perspective, around 8 lakh hectares were engulfed in a bushfire in 1820 in California. इससे एक सवाल था क्या? Largest, where did the biggest fire burn in Australia? ना? ये क्वेश्चन है शुरू में ही। Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 तो ये क्या होगा? सिडनी एंड एडिलेड ना, यानी कि सदर्न कोस्ट, ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट ना, stretches of eastern and southern coast. Yes. So along the eastern and southern coast, fourth option ना? Yes, sir. Yes, sir. पहले का चौथा. फोर्थ ऑप्शन। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा सा ये हेल्प मिल जाएगा आपको ना। ओके,
फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन. टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, around 8 lakh hectares were engulfed in a bushfire in 1820 in California. Australia has always experienced bushfires. It has a fire season, but this year they are a lot worse than normal. Fires are usually caused by lightning strikes or accidentally by a spark, but some fires are also started deliberately. This year, a natural weather phenomena known as the Indian Ocean Dipole has meant a hot, dry spell across the country. This year, Australia twice set a new temperature record. An average maximum of 41.9 degree centigrade was recorded on 18th December. That comes on top of a long period of drought. Scientists have long warned that this hotter, drier climate will contribute to fires becoming more frequent and more intense. The more extreme weather patterns and higher temperatures increase the risk of bushfire and allow them to spread faster and wider. Firefighters are spraying water and fire retardants from planes and helicopters as well from the ground. But fighting bushfire is extremely difficult and often authorities have to focus on just stopping the fire rather than putting the fire out. यहाँ से क्वेश्चन पूछा है. The spread can, for instance, be best contained by digging earth boundaries to stop the flames from spreading. The priority is saving lives. Professional firefighters are the first in line to battle the flames, but they are outnumbered by the thousands of volunteers. 3 of them have died. There's also help coming from abroad. The US, Canada, and New Zealand have sent their fighters to help. यहाँ से क्वेश्चन है शायद. Question number 4. Which of the following countries has not sent help for firefighting? China first, ना? Fourth का first. बोलो भाई. Yes, sir. धीमे धीमे लोग निकल लिए क्या? ये तो गड़बड़ बात है. मौसम खराब है शायद. अरे मौसम खराब है, ये भी हो सकता है. पैसे तो करा रहे हैं, सब आंसर तो इसी में दिया है. हम बाद में रिकॉर्डिंग भेज ही देंगे प्रेम सर, क्या दिक्कत है. Okay. हाँ, फायर फाइटर्स आर स्प्रेइंग वाटर. कहाँ पे गया वाइडर? फर्स्ट सेकंड कितने पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड, फोर्थ पे हम हैं. Firefighters are spraying water and fires retardants from planes and helicopters as well as from ground, but fighting bushfires is extremely difficult and often authorities have to focus on just stopping the fire rather than putting the fire out. The spread can, for instance, be best contained by digging earth. The spread can, for instance, be best contained by digging earth boundaries. ये to stop the flames from spreading. The priority is saving lives. Professional firefighters, यहाँ से हम लोग कर रहे. Professional firefighters are the first in line to battle the flames, but they are outnumbered by the thousands of volunteers. 3 of them have died. There's also help coming from abroad. The US, Canada, and New Zealand have sent their fighters to help. Australia's police, military, and navy are involved in rescue and evacuation efforts. While people can flee the fires and are being evacuated if need be, the flames are devastating wildlife in the affected areas. One study estimated that 500 million animals have died in South Wales alone. Zookeepers take animals home to save them from fire. But the fire don't only kill animals directly, they also destroy the habitat, leaving the survivors vulnerable even when the fires have gone. So,
the true scale loss isn't yet clear. Experts say more than 1 lakh cows and sheep may also have been lost, which is devastating for farmers. Each state run its own emergency operation, but Prime Minister Scott Morrison has promised better funding for firefighting and payouts for volunteers, firefighters, and an additional $2 billion for the recovery. But the national government has come under strong criticism from its opponents that it has not been doing enough against climate change. The country is one of the world's biggest per capita greenhouse gas emitters, but under international agreement it has committed itself to reduce target. ये किसी न्यूज़पेपर का हमको लग रहा है एडिटोरियल होगा ये। देखिए लास्ट का पैराग्राफ में लास्ट 4 लाइंस को देखिए। द कंट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिटर, जबकि वहां की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, हमारे ख्याल से इस समय वहां की जनसंख्या अधिक से अधिक होगी तो 3 के नीचे ही होगी पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑन एन एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3 लोग या उससे कम रहते होंगे। इसके बावजूद जो है ग्रेटेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, authorities have to focus on just stopping the spread rather than putting the fire out. This means that the authorities, number 1, want only to slow down the spread of fire, do not want to put the fires out, ये तो नहीं होगा, want to stop the fires from spreading fast and then put them, ये फर्स्ट नहीं होगा, फास्ट, ठीक है, नहीं हो सकता है। want to put the fires from spreading first and then to put them हो सकता है। want to put out the fire once and for all, कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड का? सर थर्ड होगा सर। यस, थर्ड होगा सर। What is the long-lasting damage that the bush fires have caused to the wildlife in Australia? The fires have not only killed animals directly but also, क्या कह रहा है, what is the long-lasting damage? Long-lasting damage. The fires have not only killed animals directly but also destroyed their habitat. Many animals in the zoos have been killed. 500 million animals have died in South Wales alone. More than 1 lakh cows and sheep may have been lost. आंसर बताइए थर्ड का। सर पहला होना चाहिए। फर्स्ट ही होगा ये। सर फर्स्ट ही हो। फोर्थ हो ही गया है। फिफ्थ, some fires are also started deliberately. Deliberately here means क्या होगा? सर पर्पसली। सर एक्सीडेंटली स्टार्ट होता है। Deliberately का मतलब क्या होता है? सर सिनोनिम तो पर्पसली होता है सर, पर सर हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए, पहले अपने आप को एक्सप्लेन करिए। सर लाइन जरा सा पढ़िए सर। पहले इसका आंसर आप लोग बताइए, मैं सुनिए, पहले इसका आंसर बताइए। आंसर अभी फाइनल नहीं करेंगे, पहले ओपिनियन ले लेते हैं। आंसर बताइए क्या होना चाहिए डेलिबरेटली का यहाँ पे? सर फोर्थ। ठीक है, ध्यान से देखिए वो कहाँ है। डेलिबरेटली वर्ड किस पैराग्राफ में है? सर सेकंड पैराग्राफ में है। The fire are usually caused by lightning strikes. थर्ड फायर्स आर थर्ड पैराग्राफ में तीसरी लाइन। ठीक है। फायर्स आर यूजुअली कॉज्ड, इसी को बस ध्यान से समझ लीजिए। फायर्स आर यूजुअली कॉज्ड, आग अक्सर लग जाती है, बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स और एक्सीडेंटली बाय अ स्पार्क। या तो लाइटनिंग से मतलब बादल गरजने के, नेचुरल जो लाइटनिंग होती है ना, ठीक है, जो कहते हैं ना बिजली कड़क रही है, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स एक तो ये है, या एक्सीडेंटली बाय स्पार्क, या इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से जो एक्सीडेंटली हो जाता है। साफ कर दिया। बट सम फायर्स, लेकिन ये दोनों जो है नेचुरल तरीके अपने से होता है, लाइटिंग स्ट्राइक और या फिर बाय स्पार्क एक्सीडेंटली। लेकिन आगे कह रहा है बट, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट
Some fires are also started deliberately. Hello? Yes, sir. So purposely. Clear है? Yes, sir. Fourth. तो फिफ्थ का फोर्थ. ओके. डेलिबरेटली का वैसे भी लिटिल मीनिंग होता है जानबूझकर. ठीक है. Yes, sir. Yes. The passage is mainly about Australia's struggle with bushfire. How the bushfire occurs in Australia, बिल्कुल नहीं. Government's role in dealing with, बिल्कुल नहीं. The loss of wildlife due to bushfire, क्या है? फर्स्ट होगा. First होगा. Yes, first. नहीं, first होगा. Australia struggle with bushfire. Okay. ठीक. 7. It can be inferred from the passage that, मैं दो वर्ड आप लोगों को दे रहा हूँ, imply and infer. IMPLY, imply and infer, INFER, दोनों का क्या मतलब है हमें कल बताइएगा. नोट करिए, imply and infer, दोनों का क्या मतलब है, दोनों का मतलब और दोनों का डिफरेंस हमको चाहिए. ठीक है. ओके. Okay, sir. 7 number. It can be inferred from the passage that this year's fire in Australia is mostly a result of, किसका रिजल्ट है? So extraordinary and dry spell, sir. Third, no? Third, okay. Yes, sir. Third. Which statement is not true according to the passage? कौन सा सही नहीं है पैसेज के अनुसार? Zookeepers take animal home to save them from fire, सही है. Volunteers outnumber the professionals firefighters, ये भी सही है. Around 8 lakh hectares have been destroyed due to bushfire in Australia. 8 lakh हेक्टेयर की बात तो ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के की कहाँ की ये नहीं पता. ठीक है. पैराग्राफ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की है ना. नहीं, एक मिनट. Australia is one of the world's biggest per capita greenhouse emitters. मैडम देखिए, फर्स्ट सही है स्टेटमेंट, बोलिए. सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है. सेकंड भी गलत है सर, सेकंड भी गलत है. जी सर. नहीं, मेरे ख्याल से सही है. सर वॉलंटियर नहीं है सर, वो जो आउटनंबर्ड वो है जो एक्सपीरियंस है आगे. अच्छा, देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं. तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड सर. सेकंड होना चाहिए. ओके, देख लेते हैं. यस, अदर्स ओपिनियन? यस सर, सेकंड. देखिए, ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट पार्ट में पढ़ रहा हूं. ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट थर्ड लाइन से शुरू कर रहा हूं. ठीक है. टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, अराउंड 8 lakh hectares were engulfed in a bushfire in 1820 in California. ऐसा तो नहीं कि कैलिफोर्निया कोई स्टेट हो ऑस्ट्रेलिया का? यस सर. Yes, sir. है भी सर. अच्छा, है भी. ओके, ठीक है. अब हम वो देख लेते हैं वॉलंटियर वाला मामला कहीं तो यहाँ दिया है सर. ये प्रोफेशनल वाला पैराग्राफ है ना उसमें सर. मैडम ये तो खो जाए. ओके, मैं ऐसे काउंटिंग करते हैं. पहला पैराग्राफ सर पहली वाली लाइन का लास्ट वाला पैरा. पहले वाले लाइन का लास्ट वाला पैरा. सर जो पैराग्राफ शुरू हुआ है ना लास्ट में, बिल्कुल लास्ट से पहले जो पहला पेज हुआ नहीं. पांचवा पैराग्राफ. पांचवा पैराग्राफ. हाँ, ऐसे बोलिए. एक 3 लाइन का भी पैराग्राफ है. 2, 3, 4. हाँ, ये प्रोफेशनल फायर फाइटर्स आर द फर्स्ट इन लाइन टू बैटल द फ्लेम्स, बट दे आर आउटनंबर्ड बाय द थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स. ध्यान से देखिए ना. हेलो सर. प्रोफेशनल फायर्स जो है वो आउट नंबर्ड हैं, जबकि वॉलंटियर जो है वो थाउजेंड्स है, मतलब काफी मात्रा में वॉलंटियर्स. हाँ, वही तो, वो बिल्कुल सही समझिए. प्रोफेशनल फायर फाइटर्स आर द
फर्स्ट इन लाइन टू बैटल द फ्लेम्स। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स हैं, यानी हम ऐसे कहें हिंदी में, जो अग्निशमन विभाग के जो लोग हैं, वो आग बुझाने के प्रथम पंक्ति में रहते हैं, यानी कि पहले वो रहते हैं आग बुझाने वालों में। हाँ या ना, यही भाव दे रहा है ना? यस सर। बट लेकिन स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, बट दे आर आउट नंबर बाई थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स। लेकिन सर वो कम मात्रा में है ना, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर की अपेक्षा। हाँ, तो कौन कम मात्रा में? प्रोफेशनल फायर फाइटर्स ना। तो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स की तुलना में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्यादा होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? आप लोग सेकंड कह रहे थे ना? यस सर। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? The volunteers outnumber the professional. The volunteers outnumber the professional firefighters in Australia. ये तो स्टेटमेंट सही है ना? Yes sir. इसमें गलत पूछ रहा है भाई। गलत कौन है? सर ये गलत। The volunteers outnumber the professionals in Australia. सारे सही है ना सर? जी सर बाकी तीनों सही हैं। अरे तो दूसरा कहाँ गलत है? दूसरा भी तो सही स्टेटमेंट है। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है भाई। सब लोग अपना ओपिनियन दीजिए भाई, ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत समझ रहे हैं। इसका भाव क्या? द वॉलंटियर्स आउट नंबर द प्रोफेशनल। जो वॉलंटियर्स हैं वो प्रोफेशनल को आउट नंबर कर देते हैं, यानी कि प्रोफेशनल की तुलना में वॉलंटियर्स ज्यादा हैं। यस अनिता मैडम एंड एवरीवन। आउट नंबर सर कम है ना, वॉलंटियर्स कम है प्रोफेशनल की अपेक्षा में ना सर। अरे नहीं भाई, वॉलंटियर ज्यादा है, आउट नंबर यहाँ पे वर्ब है। सर आप आगे वाला भी पढ़िए, दोनों सारे पढ़ लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ लिया मैडम। देखिए पहला तो छोड़ दिए, वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। चौथा भी सही है, राइट, ओके। यस सर। दूसरा का मतलब, अच्छा चलिए दूसरा जो सेंटेंस दिया है इसका भाव बताइए ना क्या है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है इसमें उसका भाव क्या, जल्दी बताइए, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। वॉलंटियर्स आउट नंबर द प्रोफेशनल फायर फाइटर्स इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब वॉलंटियर्स जो है वो प्रोफेशनल की तुलना में ज्यादा हैं। बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या पैसेज में ये बात नहीं कही गई है? पैसेज में भी तो यही बात कही गई है ना सर। प्रोफेशनल नंबर है सर। सर पैसेज में उल्टा कहा गया है सर। उसमें ये कहा गया है कि प्रोफेशनल फाइटर्स ज्यादा हैं। सर यस सर, बट दे आर आउट नंबर्ड बाय द थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स। सर दे तो प्रोफेशनल फाइटर्स ही आया। अरे रुकिए मैं एक बार फिर से पढ़ूं, हो सकता है हमारे दिमाग थक गया, और 2 मिनट रुक जाइए। ये पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। प्रोफेशनल फायर फाइटर्स आर द फर्स्ट इन लाइन टू बैटल द फ्लेम्स, but they are outnumbered by the thousand of volunteers. They are outnumbered. उनको आउटनंबर कर दिया जाता है thousands of volunteers के द्वारा। हेलो सर, आउटनंबर तो उनकी अधिक संख्या ना सर, इसका तो ये मतलब होता है ना सर। अरे भाई यहाँ पे नाउन है कि वर्ब है? आउटनंबर्ड वर्ब है सर, वर्ब है। भाव बताइए सेंटेंस का। सर भाव बताइए। आप लोग इसको ना डिस्कशन बैच ले लिए क्रैश कोर्स को, कल से इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रोफेशनल फायर फाइटर्स, ध्यान से सुनिए, प्रोफेशनल फायर फाइटर्स आर द फर्स्ट इन लाइन टू बैटल द फ्लेम्स। फ्लेम्स यानी आग से लड़ने के लिए जो है प्रोफेशनल फायर फाइटर्स ही सबसे पहली पंक्ति में रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, एक्चुअली वही फाइट करते हैं। हाँ या ना? यस सर। बट दे आर आउट नंबर्ड, लेकिन उनको आउट नंबर कर दिया जाता है। आर आउट नंबर्ड है, देखिए ना, दे आर आउट नंबर्ड। आउट नंबर्ड यहाँ पे वर्ब है ना, ये V3 है। यस सर, यस सर, यस वर्ब है, पैसिव में आया ना। उनको आउट नंबर कर दिया जाता है। उनको आउट नंबर कर दिया जाता है किसके द्वारा? वॉलंटियर्स के द्वारा। तो वॉलंटियर्स कम है या वॉलंटियर्स ज्यादा हैं?
सर ज्यादा है वॉलेंटियर्स। अनीता मैडम, सपना, यस सर। अनीता मैडम, यस सर। नहीं, नॉट अंडर प्रेशर, समझ के, नॉट अंडर प्रेशर, समझ के, विलिंगली। सर हम तो इसे छोड़ दिए, एक्चुअल में हम जो समझ रहे हैं वो हमारा आंसर नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम छोड़ दिए इसे बाद में देख लेंगे। नहीं, आप समझिए ना, तो सिर्फ तीन ही लाइन लिखा है ना, प्रोफेशनल फायर फाइटर्स आर इन द फर्स्ट लाइन टू बैटल द फ्लेम, यानी फ्लेम, आग से लड़ने के लिए, आग से जूझने के लिए प्रथम पंक्ति में प्रोफेशनल फायर फाइटर्स ही रहते हैं। ठीक है, वैसे भी आगे जो है उस वो दूसरे क्लॉज को बट से जोड़ रहा है, तो जब बट से जोड़ रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन करेगा ही। ठीक है, अब दो बातें हैं कि जो वॉलंटियर है वो कम हो सकते हैं फॉर प्रोफेशनल फाइटर्स की तुलना में, ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ या ना, लेकिन क्या कह रहा, बट दे आर आउट नंबर्ड बाय, दे आर, हु आर आउट नंबर्ड? जी सर, प्रोफेशनल फायर फाइटर्स। बाय होम? बाय द वॉलंटियर्स, है ना? तो संख्या ज्यादा किसकी हुई? सो वॉलंटियर्स की। सेटिस्फाइड एवरीवन? यस सर। बोलो भाई, सब लोग तैयार है ना? ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, जू कीपर्स टेक एनिमल्स होम टू सेव देम फ्रॉम फायर, सही है। वॉलंटियर्स आउट नंबर द प्रोफेशनल फायर फाइटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। ठीक है। फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिटर, ये भी सही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। गलत क्या है? चौथा, ये सेंटेंस एज इट इज जो है, ऑस्ट्रेलिया की जगह कैलिफोर्निया होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3 में, हाँ या ना? यस सर। पैसेज में दिया है ना, साफ साफ बोलिए भाई, पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन देख लीजिए। यस सर, दिया है सर। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, अराउंड 8 लाख हेक्टेयर्स वर engulfed in a bushfire in 1820 in California। कैलिफोर्निया की बात हो रही है। अब मुझे नहीं लगता कि कैलिफोर्निया नाम का कोई स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, चेक कर लीजिएगा आप लोग, दो आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके सर। चेक कर लीजिएगा। सर कैलिफोर्निया अमेरिका में। वो ठीक है मैडम, जैसे होता है ना एक ही नाम के राज्य दूसरी जगहों पे भी हो सकते हैं, कि नहीं? ठीक है, ओके। कौन से क्वेश्चन पे थे भैया? इतना टाइम मत लीजिए भाई, आप लोग क्रैश कोर्स है ये। The opposition in Australia is criticizing the government for not fighting the bushfire, not allotting enough funds for firefighting, not doing enough against the climate change. यही है ना? थर्ड। यस सर, थर्ड आंसर। यस सर, थर्ड आंसर। 9th का थर्ड। The spread of fire can be contained effectively by, yes. सर वन ना सर, 10 का सर वन। पहला होगा ना? यस सर। यस सर। पहला, फर्स्ट। भाई सब लोग हैं ना? कुछ लोग चले तो नहीं गए? कई लोग चले गए, बहुत लोगों को मजा नहीं आ रहा है, क्या बताएं। ओके, 11, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन विल एंड ओ, क्या मतलब है? सर सैड एंड ग्लूमी डेज। पक्का? यस सर। फर्स्ट का नहीं, 11 का फर्स्ट है। भाई बताओ, सब लोग सही है ना? यस सर, फर्स्ट होगा। चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड, अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, क्या होगा? सर फर्स्ट, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का स्पेलिंग रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फ्लाई इनटू पैशन। सर टू बिकम एंग्री सडनली, थर्ड वाला। टू बिकम एंग्री सडनली। यस सर, थर्ड सर। थर्ड। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर थर्ड वाला, ट्रैफिकिंग।
सर इसे आप देख लीजिए सर। किसे? सर इसमें तो सारे सही है सर। सर के बाद आईएनजी नहीं आ रहा है ना सर, के बाद आई गलत है। ट्रैफिकिंग देखिए, थर्ड वर्ड को देखिए, समझ में आ रहा है? थर्ड वर्ड स्पेलिंग पढ़िए, थर्ड वर्ड नहीं समझ में आ तो लिखिए उसका स्पेलिंग। तीसरा वाले का TRAFFICKING होगी ना सर, आई दी नहीं है इसमें। ठीक है सपना? यस सर, आई नहीं है सर। यस सर, आई है लेकिन वो सी के बाद होना चाहिए, सी के पहले दे दिया है। यस सर, यस। एग्जाम में ऐसी गड़बड़ी होती है। ओके, choose the correct meaning of the underlined part of the sentence. The villagers were left to scrap the barrel. Scrap the barrel क्या मतलब है? Left to scrap the barrel. Sir, to be forced to use one's last resource. पक्का? यस सर। Yes, sir. सुनिए, जो भी आप लोगों को इस पैसेज की शीट मिली है उसमें जहां पे आपको इडियम मिल रहा है, फ्रेजल वर्ब मिल रहा है या स्पेलिंग एरर मिल रहा है, उसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और आगे भी कहता हूँ, ठीक है? ओके, अब देखिए आज इतने में ही 2 घंटा ज्यादा हो गया ना सिर्फ 3 पैसेज करने में। ओके, ठीक है।